So today I'm going to talk about the nomenclature of organic compounds. Now, you all must be knowing this, that organic compounds are those compounds which contains carbon and hydrogen particularly, and some with some another element. Okay, so these are basically organic compounds, and carbon can form so many compounds because of two reasons. First is the catenation property of carbon that we all know, right? The catenation property of carbon, self-linking property, and the second one is the tetravalency. Carbon can form 4 bonds. So that is why, because of these two reasons, and being this is the main reason, carbon can form so many organic compounds. Okay, so up to now, matlab 35 lakhs organic compounds have been prepared. Okay, approximately. So if there are so many organic compounds, their naming must be very difficult. So IUPAC, that is International Union of Pure and Applied Chemistry, IUPAC suggested some rules or steps, and following these steps and rules we can clearly write the names of these organic compounds. So nomenclature means writing the names or giving names to the organic compound. So in this nomenclature part, we are going to study about how to write the names of alkanes. Alkanes means, you know, that if all single bonds are there, then it is alkanes. Then how to write the names of alkenes, that is if double bonds are there, it is alkene. And how to write the names of alkynes, okay, that is triple bond, when triple bond is there. So alkanes are known as saturated hydrocarbon, and alkenes are known as unsaturated hydrocarbon. Now what is hydrocarbon, you must be thinking? It is nothing but carbon and hydrogen. It is called hydrocarbon. All right, so organic compounds can also be named as hydrocarbon. Now, to write the name of an organic compound in accordance with IUPAC system, first of all we have to identify the parent hydrocarbon. Means, is it an alkane, is it an alkene, or is it an alkyne? What is that? Okay, and also how many functional groups are attached to it. So functional group part I am going to discuss it later. First of all, you need to remember this, kind of formula or like mantra, and how for writing the names. All right, first of all, while writing the name of any organic compound, we write the prefix. Okay, after that we write root name. After root name we are going to write the primary suffix, and after primary suffix we are going to write the secondary suffix. Okay, now what is the prefix? प्रीफिक्स क्या है, इसको जानना ज़रूरी है. प्रीफिक्स में हम क्या लिखेंगे? प्रीफिक्स में हम सब्स्टिट्यूएंट्स को लिखेंगे. प्रीफिक्स में हम किसको लिखेंगे? सब्स्टिट्यूएंट्स को. सब्स्टिट्यूएंट्स क्या होता है? वो कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, ठीक है, या फिर कोई लीस्ट प्रेफरेबल फंक्शनल ग्रुप होगा, ठीक है. इसके आगे हम बात करेंगे इसको. फिर रूट नेम में हम लिखते हैं पेरेंट नेम, पेरेंट चेन, कौन सा, कितने कार्बन की चेन बनी हुई है, ठीक है, और पेरेंट हाइड्रोकार्बन, ठीक है, उसको हम लिखते हैं. इसका एग्जांपल है, जैसे अगर एक कार्बन है तो हम लिखते हैं मीथ, है ना. 2 कार्बन है तो ईथ, 3 कार्बन है तो प्रोप, है ना. 4 कार्बन है तो ब्यूट. तो यही हमें पहचानना है कितने कार्बन की चेन है. अकॉर्डिंगली वी आर गोइंग टू राइट द नेम. ओके, नाउ then we are going to write the primary suffix. In primary suffix, what you have to write is, you have to write whether the organic compound is saturated, that is it an alkane, or unsaturated, means alkene और alkyne. अनसैचुरेटेड के लिए हम लोग लिखते हैं एल्कीन और एल्काइन. क्या है हमारा ये पहचानना ज़रूरी है.
ठीक है। आफ्टर दैट वी राइट द सेकेंडरी सफिक्स, हम लिखते हैं सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स में हम लिखते हैं फंक्शनल ग्रुप का नाम, ठीक है। जो भी हमारा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा उसको हम आखिरी में लिखेंगे। सो पहले हम ये सीखेंगे अभी फर्स्ट में कि कैसे हम जो छोटे अब ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। तो जो बड़े कंपाउंड्स हैं उनको हम बाद में सीखेंगे, पहले छोटे कंपाउंड्स को समझते हैं कि कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जब भी हम इस तरह से लिखते हैं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को तो हम ऐसे लिखते हैं, जैसे हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है CH3, CH, CH3, CH2, CH, Br, CH, OH, CH3, ठीक है। अब इसमें हमारा ये हो गया पेरेंट चेन, इसको हम कहते हैं पेरेंट चेन, ठीक है। ये हमारा हो गया ये दोनों फंक्शनल ग्रुप, देखने से पता चल रहा है फंक्शनल ग्रुप। थोड़ा बहुत आइडिया तो होगा ही फंक्शनल ग्रुप का क्योंकि स्टैंडर्ड 10 तक आपने पढ़ा है। और ये एक ब्रांच निकल के आया है जो कि CH3 ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप, जो कि सब्सटीट्यूएंट है। तो कैसे पहचानेंगे ये सब अभी हम सीखेंगे इसको, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक बातें क्लियर है। इस मंत्रा को याद रखना है, प्रीफिक्स, रूट नेम, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, ओके। नाउ अब हम शुरू करते हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्केन्स। एल्केन्स का कैसे हम IUPAC नॉमेनक्लेचर करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम स्ट्रेट चेन एल्केन्स का नॉमेनक्लेचर सीखेंगे, स्ट्रेट चेन एल्केन्स, ओके। नाउ स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन में सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको, क्या लिखना आपको ज़रूरी है, आपको जानना ज़रूरी है प्रीफिक्स क्या है, देन आपको पता होना चाहिए वर्ड रूट क्या है, ठीक है। वर्ड रूट के बाद प्राइमरी सफिक्स एंड देन सेकेंडरी सफिक्स तो बाद में आता है जो फंक्शनल ग्रुप अटैच होगा। तो फ़िलहाल हमारे पास मान के चलते हैं पहले प्रीफिक्स, ठीक है। तो प्रीफिक्स हम थोड़ा देर बाद आते हैं इस पर, पहले हम समझते हैं कि वर्ड रूट कैसे पहचानेंगे, है ना। तो जब भी नाम लिखना है आपको स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन का, फर्स्ट वी राइट द वर्ड रूट या फिर प्रीफिक्स, जिसको भी हम कार्बन एटम कितने का है, कितना सारा है, उसको हम इंडिकेट करने के लिए वर्ड रूट यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए चेन लेंथ क्या है और हम वर्ड रूट क्या यूज़ करते हैं, ठीक है। तो चेन लेंथ अगर एक है, मतलब एक कार्बन की चेन है, तो वर्ड रूट हम यूज़ करेंगे मीथ, ठीक है। 2 कार्बन की चेन है तो ईथ, 3 कार्बन की चेन है तो प्रोप, 4 कार्बन की चेन है तो ब्यूट, ठीक है। 5 कार्बन की चेन है तो पेंट, 6 कार्बन की चेन है तो हेक्स, 7 कार्बन की चेन है तो हेप्ट, 8 कार्बन की चेन है तो ऑक्ट, 9 कार्बन की चेन है तो नॉन एंड 10 कार्बन की चेन है तो हम यूज़ करेंगे डेक, ठीक है। तो ये सारे हम वर्ड रूट यूज़ करेंगे, ठीक है। आई होप ये बात क्लियर है आपको। अब वर्ड रूट को पहचान लेने के बाद हम सफिक्स लगाएंगे, है ना। ये सफिक्स, अब एल्केन अगर है आपके पास, एल्केन हम सीख रहे हैं, एल्केन लिखना है। एल्केन मतलब सारे सिंगल बॉन्ड है, जैसे ये मीथेन हो गया, है ना, इसमें सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एल्केन हो जाएगा, ठीक है। तो एल्केन में हम लोग क्या लगाते हैं ना, ये जो आपका 1 डिग्री सफिक्स है उसमें हम लास्ट में लगाते हैं एन, ठीक है। वर्ड रूट हमने पहचान लिया, अब हम लगाएंगे एन, ओके। तो एल्केन्स के लिए ये हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे वर्ड रूट प्लस एन, तो ये क्या बन जाएगा आपका एल्केन, है ना। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास है CH4, है ना, CH4 है, तो अब एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है, तो एक कार्बन है तो वर्ड रूट क्या लिखेंगे हम, इसमें मीथ लिखेंगे ना। तो हम लिखेंगे इसमें मीथ वर्ड रूट के जगह, क्योंकि यहाँ कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच नहीं है, कोई मिथाइल ग्रुप वगैरह कुछ नहीं है, सिंपल एक CH4 है, मीथेन है, तो इसके लिए प्रीफिक्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जहाँ सब्स्टिट्यूएंट्स रहेगा वहाँ प्रीफिक्स लगाएंगे। तो मीथ हो गया एंड इधर लास्ट में क्योंकि एल्केन है, सारे सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो ये क्या बन जाएगा मीथेन, है ना, इजी। अब इसी तरह से अगर आपके पास ये है CH3, इसमें आपको 2 कार्बन दिख रहा है, 2 कार्बन है तो वर्ड रूट क्या यूज़ करेंगे हम, ईथ यूज़ करेंगे। तो हम लिखेंगे ईथ प्लस, क्योंकि सारा सिंगल बॉन्ड है तो एन, ये हो जाएगा ईथेन, ठीक है।
उसके बाद अगर आपके पास ये है CH3 CH2 CH3, तो ये क्या हो जाएगा, 3 कार्बन की चेन है, तो ये क्या हो जाएगा, वर्ड रूट इसका प्रोप प्लस एन, so it will be propane. After that, when you have 4 carbon in an organic compound, it will become, the word root will be but plus ane, butane. I think you have got the idea how to write simple hydrocarbons, right? अब हम आगे लिखते जाएंगे ना, तो बस CH2 ग्रुप लगाते जाएंगे बीच में, CH3 2 टर्मिनल जगह लगा दीजिए आप, ठीक है, और जितना आपको कार्बन चाहिए आप लगाते जाइए, CH2 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 CH2, ये हो गया क्या, ब्यूट हो गया, 1 2 3 4 5 6 हो गया ये, तो ये हो जाएगा हेक्सेन। उसी तरह से 5 CH2 लगाइएगा, 3 CH2 लगाइएगा, टोटल 5 कार्बन की चेन हो जाएगी, तो पेंटेन, लाइक दैट, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया कि हम लोग वर्ड रूट, ये जो हमारा वर्ड रूट और प्रीफिक्स में हम लोग क्या लिखते हैं, ठीक है। अगर मान लो तुम्हारे पास कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है, मान लो कोई अल्काइल ग्रुप अटैच्ड है, तो उसको कैसे हम लिखेंगे, अल्काइल ग्रुप को हमेशा हम लोग लिखेंगे प्रीफिक्स, ठीक है। तो दूसरी बात जो आपको जाननी ज़रूरी है वो है नेमिंग द अल्काइल ग्रुप, नेमिंग अल्काइल ग्रुप, ठीक है। नाउ अल्काइल ग्रुप क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो कि व्हाट इज़ अल्काइल ग्रुप। नाउ द ग्रुप विच इज़ ऑब्टेन्ड बाय रिमूविंग 1 हाइड्रोजन एटम फ्रॉम द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। मान लो तुम्हारे पास जो एल्केन है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब है एल्केन, एल्केन से जब आप एक हाइड्रोजन निकाल लें, एक हाइड्रोजन आप निकाल लें, तो आपको क्या मिलेगा, CH3 ग्रुप, मान लो CH4 है, एल्केन है, मीथेन है, उससे एक हाइड्रोजन आपने माइनस कर दिया, तो आपको मिला CH3, तो इसी को कहते हैं हम लोग एल्काइल, ठीक है। एल्केन है ना, तो इसमें कुछ नहीं करना है, एन हटा के YL जोड़ देना है, तो बन जाएगा एल्काइल लिखने के लिए। और ऐसे बेसिकली हम लोग कर क्या रहे हैं, एक हाइड्रोजन निकाल रहे हैं, तो वह हमारा एल्काइल ग्रुप बन गया। तो ये मीथेन था, ये क्या बन जाएगा, मिथाइल, ठीक है, एक हाइड्रोजन आपने रिमूव किया है। उसी तरीके से इथेन अगर लिखेंगे C2H6, उससे एक हाइड्रोजन आप हटा देंगे, तो क्या बनेगा, C2H5, तो ये क्या हो जाएगा, इथाइल। सिमिलरली C3H8 इज़ प्रोपेन, राइट, इसे एक हाइड्रोजन रिमूव करोगे तो C3H7 होगा, तो ये हो जाएगा प्रोपाइल। सिमिलरली C4H10 दैट इज़ ब्यूटेन, ब्यूटेन से आप निकाल लेंगे एक हाइड्रोजन, तो ये हो जाएगा ब्यूटाइल एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोपाइल है ना, तो आप इसको N प्रोपाइल भी लिख सकते हैं, N ब्यूटाइल भी। अब ये N क्या है इसको हम समझाएंगे आगे, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग अल्काइल ग्रुप को लिखते हैं। तो कभी कभी अल्काइल ग्रुप को ना, जैसे मिथाइल ग्रुप है, उसको किसी किसी बुक में ME भी लिखा हुआ मिलेगा, इथाइल ग्रुप को ET भी लिखा हुआ मिलेगा, प्रोपाइल को PR भी लिखा हुआ मिलेगा, ब्यूटाइल को BU भी लिखा हुआ मिलेगा। तो इसका जस्ट अब्रेविएशन है, शॉर्ट फॉर्म्स है, ठीक है। तो किसी भी अल्काइल ग्रुप, कोई भी अल्काइल ग्रुप, जैसे मिथाइल हो, इथाइल हो गया और मिथाइल हो गया, कोई भी अल्काइल ग्रुप अगर आपके कार्बन एटम में या कार्बन चेन में प्रेजेंट है, तो उसको नाम देना भी बहुत ज़रूरी है। उसको हम प्रीफिक्स में लिखेंगे हमेशा, एकदम शुरुआत में, है ना, एकदम रॉयल उनको फील कराना है। चलो नेक्स्ट इज़, अब जो अल्काइल ग्रुप आपका है उसमें कभी कभी आपको ब्रांचिंग भी मिलता है, ठीक है। अल्काइल ग्रुप में क्या मिलता है, कभी कभी ब्रांचिंग, ठीक है, इट इज़ वेरी important, all right, and that is why sometimes we use some terms for depicting this branching, all right. The terms are iso, all right, N, then neo, then हो गया आपका secondary और sec and tertiary dot, all right. Now what is iso? iso का मतलब होता है आइसोमर, ठीक है। नाउ आपके पास ये अल्काइल ग्रुप है, ये आपके पास एक अल्काइल ग्रुप है, ठीक है। अब ये हम कार्बन को अगर हम नंबरिंग देंगे 1 2 3, इधर से भी अगर हम नंबरिंग देते हैं फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट और लेफ़्ट टू राइट, ये हो गया हमारा मिडिल कार्बन। जब भी मिडिल कार्बन के साथ 2 मिथाइल ग्रुप्स अटैच रहे, उसको हम कहते हैं आइसो,
ठीक है, उसके लिए हम ये टर्म यूज़ करते हैं आइसो. सो व्हेन कार्बन विच इज़ प्रेजेंट इन सेकेंड लास्ट पोजिशन एंड टू मिथाइल ग्रुप्स आर अटैच्ड टू दिस कार्बन देन इट इज़ कॉल्ड आइसो अल्काइल. आइसो अल्काइल है तो ये हम क्या लिखेंगे, देखो 3 कार्बन की चेन है हमारे पास, तो हम इसको क्या लिखेंगे, आइसो प्रोपाइल, है ना. 3 कार्बन के लिए हम लोग वर्ड रूट क्या यूज़ करते हैं, प्रोप यूज़ करते हैं, क्योंकि ये अल्काइल ग्रुप है, एक हाइड्रोजन कम है, इसीलिए हम आइसो प्रोपाइल यूज़ करेंगे. ठीक है, तो जब भी इस तरह से मिडिल कार्बन में अगर आपके पास ये जो आपका ग्रुप है, ये आपका अल्काइल ग्रुप है और ये किसी पेरेंट चेन के साथ इस तरह से कनेक्टेड रहे, तो आपको नाम देना है इसको आइसो, और जो भी आपका जितने कार्बन की चेन है उसको. ठीक है, नाउ नेक्स्ट एन अल्काइल. एन का मतलब होता है स्ट्रेट चेन, ठीक है, या लॉन्ग चेन, जो भी आप कहेंगे. तो जब भी कोई अल्काइल ग्रुप एकदम स्ट्रेट चेन के फॉर्म में प्रेजेंट रहे, जैसे इस तरह से CH2 CH2 CH3, ठीक है, इस तरह से वो प्रेजेंट रहे, तो इसको हम कहते हैं एन टर्म यूज़ करेंगे हम. ठीक है, क्यों, स्ट्रेट चेन में है. इसमें बोलोगे मैम ये भी तो स्ट्रेट चेन में है, स्ट्रेट चेन में है बट ये ब्रांच भी तो है, ये जो अल्काइल ग्रुप है इसके साथ 2 मिथाइल ग्रुप जुड़ गया ना, यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है, तो इसी तरह से, तो ये आपको समझना होगा. नेक्स्ट है नियो. नियो क्या है, इसी तरह से जब भी कोई पेरेंट चेन है, यहाँ पे सारे कार्बन की चेन है, कार्बन हाइड्रोजन की, ठीक है, इसके साथ ब्रांचिंग में एक अल्काइल ग्रुप है जो इस तरह से आपको दिखेगा, इस तरीके से. अगेन ये सेकेंड लास्ट कार्बन है, नंबरिंग हम देंगे तो ये कार्बन हमारा सेकेंड लास्ट होगा. तो ये जो सेकेंड लास्ट कार्बन है इसके साथ अगर 3 मिथाइल ग्रुप्स जुड़ जाएं तो उसको हम कहते हैं नियो. ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, नियो. ठीक है, अगेन दिस विल बिकम नियो प्रोपाइल. ठीक है, लाइक दैट. नाउ नेक्स्ट इज सेकेंडरी. जो नेक्स्ट टर्म हम यूज़ करेंगे वो है हमारा सेकेंडरी, और सेक भी लिखते हैं इसको, सेकेंडरी अल्काइल. ये क्या है, जब भी आपका कोई पेरेंट चेन है उसके साथ कोई अल्काइल ग्रुप जुड़ा है और उसके साथ उसका जो सेकेंड लास्ट कार्बन है उसके साथ 2 अलग अलग अल्काइल ग्रुप जुड़े हों, लाइक दिस. ठीक है, ये अगेन सेकेंड लास्ट कार्बन है, इसको आप नंबरिंग देंगे तो हमेशा ये सेकेंड नंबर पे आ रहा है, तो सेकेंड लास्ट कार्बन हो गया, है ना. तो इसको हम कहते हैं, अगर अलग अलग अल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड है तो इसको हम कहते हैं सेकेंडरी अल्काइल. ठीक है, समझ रहे हो. मतलब अगर सेकेंड लास्ट कार्बन आप नहीं भी देख रहे हैं, जस्ट सपोज़ कि हम यहाँ पे 4 कार्बन की चेन लिखेंगे 1 2 3 4, तो सेकेंड लास्ट कार्बन अगर नहीं भी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, तो भी हम मतलब बस ये देखना है कि जो कार्बन पेरेंट चेन से अटैच्ड है उसके साथ 2 अलग अलग मिथाइल या मिथाइल इथाइल जो भी अल्काइल ग्रुप है अलग अलग रहने चाहिए, तब हम उसको सेकेंडरी नाम देंगे, सेकेंडरी टर्म यूज़ करेंगे उसके लिए. ठीक है, नेक्स्ट इज़ टर्शियरी. नेक्स्ट इज़ टर्शियरी. टर्शियरी क्या है, अगेन आपके पास एक पेरेंट चेन है, PC लिख रही हूँ मैं, किसी एक कार्बन के साथ एक अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है. ठीक है, एक अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है लाइक दिस, एंड यहाँ पे क्या है, देखो अगेन ये वाला कार्बन पेरेंट चेन से जुड़ा है, उसके साथ देखो 3 डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स जुड़े हुए हैं. ठीक है, 2 मिथाइल होगा और ये कौन सा है, प्रोपाइल होगा ना, 3 कार्बन की चेन है तो प्रोपाइल होगा. ठीक है, ये हो गया. और ये ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे कुछ और रहे, है ना, यहाँ पे कोई और ग्रुप अटैच रहे. मतलब कहने का मतलब है कि जो कार्बन पेरेंट चेन से अटैच्ड है वो अगर 3 डिफरेंट अल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ हो तब हम नाम देते हैं इसको टर्शियरी अल्काइल. ठीक है, तब हम नाम देते हैं इसको टर्शियरी अल्काइल. ऑलराइट, तो ये बात आपको समझना होगा. ओके, सो अभी हम लोगों ने सीख लिया कि स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन को कैसे नेम देते हैं. हम उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, वर्ड रूट एंड प्राइमरी सफिक्स, है ना. तो हमने ये सीख लिया कि अगर स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन है तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं वर्ड रूट एंड प्राइमरी सफिक्स, एंड अगर सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच्ड है तो वो ब्रांच में आएंगे, है ना, तो उसको हम लोग
ब्रांचिंग में पढ़ेंगे, मतलब नॉमेनक्लेचर ऑफ ब्रांच चेन एल्केन्स। तो स्ट्रेट चेन एल्केन्स में कुछ नहीं है, सिर्फ वर्ड रूट और सफिक्स होगा, उसको देख के ही कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है उसको देख के ही हम पहचानेंगे। एंड अगर डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड भी प्रेजेंट है, मान लो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, तो उसके लिए कुछ नहीं करना है। अगर एल्कीन है, ठीक है, तो वर्ड रूट हम देखेंगे और लास्ट में हम लगा देंगे इन। मान लो कि अगर डबल बॉन्ड है तो इथीन हो जाएगा, इथीन हो जाएगा, प्रोपीन हो जाएगा, लाइक दिस, इस तरीके से। और अगर एल्काइन है तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, इथाइन, प्रोपाइन, लाइक दिस, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यूज़ करते हैं। तो स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन का नेमिंग बहुत इजी है। और अगर ब्रांचिंग है तो ब्रांचिंग के केस में हमें अल्काइल ग्रुप को पहचानना होगा। अल्काइल ग्रुप वो ग्रुप होते हैं जिनमें एक हाइड्रोजन आटम कम रहता है। जैसे मीथेन से एक हाइड्रोजन निकाल देंगे तो मिथाइल बन जाएगा, वो एक अल्काइल ग्रुप है, ठीक है। अगर आपका इथेन है तो इथेन से एक हाइड्रोजन निकाल देंगे तो इथाइल बन जाएगा, ठीक है। अगर फर्दर ब्रांच है, अल्काइल ग्रुप अगर फर्दर ब्रांच्ड है तो उसके लिए हम लोग कुछ टर्म यूज़ करते हैं, आइसो, एन, नियो एंड सेक एंड टर्ट, ठीक है। आइसो कब यूज़ करेंगे, जब सेकेंड लास्ट कार्बन के साथ 2 मिथाइल ग्रुप्स अटैच रहे, तब उसको हम आइसो अल्काइल कहेंगे। और ये जो हमारा अल्काइल ग्रुप है वो किसी पेरेंट कार्बन के साथ अटैच होना चाहिए। आफ्टर दैट एन अल्काइल मतलब स्ट्रेट चेन में है, स्ट्रेट चेन में ये अटैच्ड है, ठीक है। कोई भी कार्बन इस तरह से वो स्ट्रेट चेन में अटैच्ड है तो इसको हम एन प्रोपाइल लिखते हैं। देन आफ्टर दैट नियो, नियो का मतलब है कोई सेकेंड लास्ट कार्बन है उसके साथ 3 डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स जुड़े हैं, मिथाइल ग्रुप्स जुड़े हुए हैं, तो उसको हम नियो टर्म यूज़ करते हैं। सेकेंडरी अल्काइल क्या होता है, जो भी आपका कार्बन एटम है जो पेरेंट चेन से जुड़ा हुआ है, कनेक्टेड है, उसके साथ अगर 2 डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स जुड़े हुए हैं तो सेकेंडरी अल्काइल हम कहेंगे उसको। और अगर टर्शरी कब कहेंगे, जब कोई कार्बन एटम है जो पेरेंट चेन से कनेक्टेड है एंड उसके साथ 3 डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स जुड़े हैं, तो दैट वुड बिकम द टर्शरी कार्बन। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द nomenclature of branched chain alkanes, ठीक है। और हाइड्रोकार्बन अगर ब्रांचिंग है तो उस केस में हम लोग कैसे नाम देंगे, जैसे फॉर एग्जांपल इस तरह से देखो, CH3 CH CH3 CH2 CH3, है ना। तो ये तो हमारा पेरेंट चेन बन गया। पेरेंट चेन कैसे पहचानेंगे, इसका भी रूल है, बस रूल फॉलो करते जाएंगे और समझते जाएंगे। ये आपका क्या है, अल्काइल ग्रुप ना, मतलब कौन सा ग्रुप है ये, मिथाइल ग्रुप, ठीक है। ये सब्स्टिट्यूएंट है, तो अब ये ब्रांच हो गया। तो ये तो पहले तो हम स्ट्रेट चेन पढ़ रहे थे सीधा, है ना, यहाँ पे हम सिर्फ स्ट्रेट चेन पढ़ते जा रहे थे। ये देखो, ये सब स्ट्रेट चेन्स था। अब हमारे पास ब्रांचिंग शुरू हो गई है, मतलब अल्काइल ग्रुप्स ब्रांच के फॉर्म में हमें दिखने लगे हैं। तो इसको हम कैसे नाम देंगे, ठीक है। इसको नाम देने के लिए आपको कुछ रूल्स फॉलो करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये रूल्स आपको दिया गया है IUPAC से, ताकि आप आराम से इसको समझ पाएँ। द फर्स्ट रूल इज़ द लॉन्गेस्ट चेन रूल, ठीक है। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लॉन्गेस्ट चेन चुनना है कार्बन की, ठीक है। कौन सी लंबी कार्बन की चेन है, जैसे ये CH3 CH CH3 CH2 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 CH CH2 CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक है। लंबी कार्बन की चेन कौन सी है, सबसे पहले 2 मिनट आप सोच लीजिए कि किसको हम लंबी कार्बन की चेन मानेंगे, ठीक है। देखो, अब सबसे पहले लंबी कार्बन की चेन को समझने के लिए हमें शुरू करना है नंबरिंग करना कार्बन को। हम कार्बन को इस तरह से नंबरिंग करेंगे कि हमें एक लंबी सी कार्बन की चेन मिले, उसी चेन को हम कहेंगे पेरेंट चेन, ठीक है। नाउ अब आप नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी, यहाँ से भी और यहाँ से भी, और बीच से भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है सिर्फ यहाँ से भी और यहाँ से भी हो। अगर सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच्ड है उससे भी आप नंबरिंग कर सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आपको नंबरिंग सही से करनी होगी, ठीक है, वरना गलत हो जाएगा। चलो इसको समझते हैं। तो नंबरिंग करने के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम इस यहाँ से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। इसमें 9 कार्बन की चेन हो रही है। एक और नंबरिंग हो सकता है,
इधर से भी हम जाएंगे तो भी हमारा 9 कार्बन की चेन ही होगी ये, ठीक है। तो इसको तो ज़रूरत नहीं है। एक और नंबरिंग हो सकता है यहाँ से, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, तब तो 8 ही कार्बन की चेन हो रही है अगर हम यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो। इसीलिए हमारी समझदारी किस में होगी कि हम नंबरिंग सीधी करें, है ना, सीधा स्टार्ट करें नंबरिंग। तो हमारे पास 9 कार्बन की चेन हमें मिल रही है, ठीक है। अच्छा, तो ये तो हो गया हमारा पहला रूल, दैट इज़ लॉन्गेस्ट चेन रूल। हमें उस कार्बन को की चेन को चुनना है जहाँ से लंबी कार्बन की चेन बने, ठीक है। नाउ हमारे पास अब 2 सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच्ड है, मिथाइल और इथाइल ग्रुप, है ना। अब इनका भी एक रोल है, ठीक है। जो नेक्स्ट आपका है रूल, वो दैट इज़ लोएस्ट नंबर और लोएस्ट सम रूल। आपको नंबरिंग अपने मन से नहीं करना है, आपको नंबरिंग ऐसे करना है कि जो 2 अल्काइल ग्रुप्स प्रेजेंट है उसको लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिले, ठीक है। बात को समझो, जो अल्काइल ग्रुप्स प्रेजेंट है उसको लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिलना चाहिए, ठीक है। तो पहले वाले एग्जांपल से ही हम समझते हैं कि मान लो अगर हम यहाँ से नंबरिंग शुरू करते हैं, ठीक है, अगर हम यहाँ से नंबरिंग शुरू करते हैं, एक सेकेंड, हाँ, अगर हम यहाँ से नंबरिंग शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है। तो जो हमारे 2 सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है, ये मिथाइल ग्रुप और इथाइल ग्रुप, इनको क्या नंबर मिल रहा है, दोनों साइड से चेक करते हैं। जो हमारा ऊपर वाला साइड है, जो मैंने ग्रीन से लिखा है, उससे जब मैं यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करूँगी तो दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स को कितना नंबर मिल रहा है, एक सेकेंड पोजीशन पे है सेकेंड कार्बन के साथ, दूसरा 6th कार्बन के साथ, 2,6 मैंने लिख दिया। नेक्स्ट अगर मैं डाउन साइड से मतलब मेरे राइट से लेफ़्ट में जाती हूँ, उससे नंबरिंग स्टार्ट करती हूँ, तो सब्स्टिट्यूएंट्स को क्या नंबर मिल रहा है, 4 और 8, है ना। तो दोनों में से कौन ज़्यादा है, ऑब्वियसली 4 एंड 8 ज़्यादा है। तो मतलब ये है कि जो हमारा राइट टू लेफ़्ट हम नंबरिंग कर रहे हैं, कर तो सकते हैं बट ये हमारा सही नहीं होगा अकॉर्डिंग टू रूल। क्यों? क्योंकि इसमें हमारे सब्स्टिट्यूएंट्स को लोएस्ट पॉसिबल नंबर नहीं मिल रहा है, इसीलिए जो हमारा, जो मैंने ग्रीन से लिखा हुआ है, हम उसी को मानेंगे, ठीक है। तो अगर हम ऐसा हमारे पास है तो हम यही फॉलो करेंगे रूल। सबसे पहले हमने क्या सीखा, लॉन्गेस्ट चेन रूल, मतलब आपको लंबी कार्बन की चेन चुननी है और आपको इस तरह से कार्बन को नंबरिंग करना है कि जो सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच्ड है उसको लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिले, ठीक है, एकदम कम से कम नंबर मिले। तो वहीं से आपको कार्बन की चेन को चुनना होगा, ठीक है। अच्छा, तो इसका अगर हम नाम लिखना चाहें तो हम क्या नाम लिखेंगे, हमारे पास यहाँ पे क्या है, मिथाइल ग्रुप है और इथाइल ग्रुप है, ठीक है। तो मैंने आपको एक मंत्रा बताया था अभी अभी, प्रीफिक्स, देन वर्ड रूट, देन प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है। अब सेकेंडरी सफिक्स जो है वो हम बाद में सीखेंगे क्योंकि इसमें हम लोग फंक्शनल ग्रुप लिखते हैं। अभी हम ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स पढ़ रहे हैं तो हमें ध्यान देना है किस पे, प्रीफिक्स पे, वर्ड रूट पे और प्राइमरी सफिक्स पे, ठीक है। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। अब इसको नेमिंग करना, क्या लिखेंगे हम इसमें, ज़रा सोचिए। हमारे पास मिथाइल ग्रुप है और इथाइल ग्रुप है, तो हमें ना जब भी हमारे पास 2 अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच्ड रहेंगे तो सबसे पहले हम उनका नंबर लिखते हैं, ठीक है। और अलग अलग अगर सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच्ड है तो अल्फ़ाबेटिकली जो पहले आ रहा है उसको पहले लिखना है। तो मिथाइल और इथाइल में से हम जानते हैं इथाइल पहले आता है, तो इसीलिए हम उसको वैसे लिखेंगे। तो कैसे नाम लिखेंगे, सबसे पहले 6 कार्बन के साथ मेरा इथाइल ग्रुप अटैच्ड है, तो हम लिखेंगे 6 डैश हाइफन देंगे इथाइल, ये बहुत ज़रूरी है, नंबर और अल्काइल ग्रुप के बीच में हाइफन लगाना, ठीक है। उसके बाद हमारे पास दूसरा जो अल्काइल ग्रुप है वो कहाँ है, सेकेंड कार्बन के साथ, तो हम नंबर लिख देंगे, सेकेंड कार्बन के साथ मेरा मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है। तो ये हमारा क्या बन गया, प्रीफिक्स बन गया, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट है तो ये हमारा प्रीफिक्स में लिखेंगे हम इसको। उसके बाद हम वर्ड रूट लिखेंगे, तो वर्ड रूट में हमारे पास टोटल कितने कार्बन की चेन है, 9 कार्बन की चेन है, तो हम लिखते हैं 9 कार्बन के लिए वर्ड रूट लिखते हैं नॉन, ठीक है। एंड प्राइमरी सफिक्स में हम लिखते हैं हमारा
सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है कि अनसैचुरेटेड, मतलब डबल, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। अगर सिंगल बॉन्ड है तो एल्केन है, तो लास्ट में हम लगाते हैं एन। क्योंकि यहाँ पे सारे सिंगल बॉन्ड दिख रहे हैं मुझे, तो मैं इसमें नाम लिख दूँगी एन। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि 6 पोजीशन पे इथाइल ग्रुप है, सेकंड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है, 9 कार्बन की चेन है, वर्ड रूट में हो गया ये नॉन, एंड प्राइमरी सफिक्स में एन। ठीक है, तो ये आपका नाम हो गया 6 इथाइल 2 मिथाइल नॉन एन। ओके, नाउ जस्ट सपोज अगर आपके पास कोई अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, जैसे ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब है डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, उस केस में हम कैसे नंबरिंग करते हैं। ठीक है, उस केस में हम नंबरिंग करेंगे इस तरीके से कि जो आपका मतलब डबल या ट्रिपल बॉन्ड है उसको लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिल सके। ठीक है, तो यहाँ पे भले ही सब्स्टिट्यूएंट क्यों ना प्रेजेंट हो, बट आपको प्रेफरेंस लोएस्ट नंबर किसको देना है, डबल बॉन्ड को या ट्रिपल बॉन्ड को। तो उस कार्बन से आपको नंबरिंग शुरू करनी है और उस कार्बन को पेरेंट चेन चुनना है जिससे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ से शुरू करेंगे 1 2 3 एंड 4। ये 4 कार्बन की चेन मैंने चुन ली। हम ऐसा भी कर सकते हैं 1 2 3 और 4 इसको मान लेंगे, तो ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। ठीक है, तो ये भी हो सकता है। खैर जो भी हो, हम यहीं से इसको स्ट्रेट चेन ले रहे हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4, तो 4 कार्बन की चेन बन गई। तो अब इसको हम नाम कैसे देंगे, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, मंत्रा याद रखना है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स में हम लिखते हैं सब्स्टिट्यूएंट को। सब्स्टिट्यूएंट क्या है, अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप में यहाँ पे क्या है मेरे पास, मिथाइल ग्रुप है। थर्ड कार्बन के साथ मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे 3 मिथाइल। उसके बाद लिखेंगे हम लोग वर्ड रूट, है ना। वर्ड रूट मेरा क्या है, 4 कार्बन की चेन है, तो वर्ड रूट बन जाएगा ब्यूट। वर्ड रूट के लिए हम क्या देखते हैं, कितने कार्बन है, कितने कार्बन की चेन बनी हुई है, तो हो जाएगा ब्यूट। उसके बाद फर्स्ट कार्बन के साथ मेरा एक डबल बॉन्ड है, तो इसीलिए हम इधर लिखेंगे 1 और डैश देके फिर हम लिखेंगे, डबल बॉन्ड के लिए हम लोग यूज़ करते हैं ना इन, हम लोग यूज़ करेंगे इन। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा 3 मिथाइल ब्यूट 1 इन। ओके, सिमिलरली अगर आपके पास ट्रिपल बॉन्ड है लाइक दिस, CH3 CH C ट्रिपल बॉन्ड C और यहाँ पे CH3, तो इसको भी वही करना है, ट्रिपल बॉन्ड को भी आपको पहला नंबर देना है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, अगेन 3 मिथाइल, अगेन 4 कार्बन की चेन है ब्यूट, फर्स्ट कार्बन के साथ आपके पास ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसके लिए हम लिखते हैं आइन। ठीक है, ये बात का ध्यान रखना है। अच्छा, अगर ऐसा कोई आपके पास सिचुएशन है जिसमें 3 डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स प्रेजेंट है, 3 सेम अल्काइल ग्रुप्स प्रेजेंट है। अगर डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स प्रेजेंट है तो अभी हम समझ गए हैं, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसके लिए अल्फ़ाबेटिकली लिखते हैं नाम को। ठीक है, हम लोग उसके लिए क्या करते हैं, अल्फ़ाबेटिकली नाम को लिखते हैं। वो जस्ट सपोज इसमें देखो 3 सेम अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, उसको हम कैसे नाम देंगे। उसके लिए हम लोग अगेन वही रूल, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन रूल, हमें वहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करनी है जहाँ से अल्काइल ग्रुप को लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिले। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से शुरू करते हैं नंबरिंग देना, तो अल्काइल ग्रुप को क्या नंबर मिल रहा है, देखो 2 3 एंड 5। और अगर हम यहाँ से नंबरिंग करना शुरू करते हैं तो अल्काइल ग्रुप को क्या नंबरिंग मिल रहा है, अगेन 2 4 एंड 5। तो ऑब्वियसली एक को ज़्यादा नंबर मिल रहा है, इसीलिए हम इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। मतलब ये हमारा सही है, ये हमारा नंबरिंग करना गलत है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5। अब हम देख रहे हैं कि सेकेंड कार्बन में, थर्ड कार्बन में और फिफ्थ कार्बन में मेरे पास मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। तो हम क्या करेंगे, ये हमारा प्रीफिक्स है, सब्स्टिट्यूएंट है मतलब प्रीफिक्स है, तो हम लिखेंगे 2 3 5, फिर हाइफन लगाएंगे। 3 मिथाइल ग्रुप है इसलिए ट्राई मिथाइल। उसके बाद वर्ड रूट लिखते हैं ना, वर्ड रूट मतलब कितनी कार्बन की चेन है वो देखनी है, तो क्या हो जाएगा हेक्स एंड ये एन क्यों, क्योंकि सारा सिंगल बॉन्ड है इसीलिए अल्केन है, तो अल्केन के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, प्राइमरी सफिक्स एन, तो ये हो जाएगा 235 ट्राई मिथाइल हेक्सेन। ठीक है, ऑलराइट, तो ये हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको समझना। ठीक है,
अगर दो अल्काइल ग्रुप इक्विवेलेंट पोजीशन पे है, तो अगर सेम पोजीशन पे है तो भी हमें उसी तरह से लिखना है, मतलब जो भी आपका अल्काइल ग्रुप है, ठीक है, अल्फ़ाबेटिकली ही उसको लिखना होगा हमेशा। भले ही आपका नंबरिंग दोनों तरफ से सेम क्यों ना आ रहा हो अल्काइल ग्रुप का, आपको अल्फ़ाबेटिकली ही लिखना है अल्काइल ग्रुप को। अगर आपके पास अल्काइल ग्रुप है प्रोपाइल और ब्यूटाइल, ठीक है, तो ऑब्वियसली ब्यूट को पहले लिखेंगे, प्रोप को बाद में लिखेंगे, क्योंकि बी अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है, ठीक है। नाउ जस्ट सपोज़ अगर आपका अल्काइल ग्रुप फर्दर ब्रांच्ड है, मतलब और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपका एक अल्काइल ग्रुप है, ध्यान से इसको समझना है, ठीक है, CH3, अब यहाँ देखो, ये जो कार्बन है यहाँ पे मैंने CH लिखा है, बाकी सब में CH2 CH3, क्यों ऐसा? इसलिए क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी कार्बन 3 बॉन्ड बनाया हुआ है ना, हाइड्रोजन के साथ, और इधर 2 बॉन्ड, तो एक ही बॉन्ड वो और बना सकता है ना, कार्बन टोटल 4 बॉन्ड बना सकता है, तो इसीलिए यहाँ पे CH मैंने लिखा है। अब देखो यहाँ पे कितनी सारी यहाँ पे ब्रांचिंग है, ये तो खैर हमें समझ में आ रहा है क्लियरली कि ये हमारा अल्काइल ग्रुप है और ये हमारा क्या है, पेरेंट चेन, ठीक है। तो पेरेंट चेन है तो यहाँ पे हम नंबरिंग देते हैं इसको, सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और अगर इधर से नंबर दें तो 1 2 3 4 5, दोनों तरफ आपको इक्विवेलेंट ही नंबरिंग मिल रही है, तो कहीं से भी आप नंबरिंग कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अल्काइल ग्रुप ऐसे पोजीशन पे प्रेजेंट है कि दोनों तरफ से भी नंबरिंग करें तो एक ही नंबर आएगा, ठीक है। अब यहाँ क्या है कि अगर ये आपका एक अल्काइल ग्रुप है जो कि बहुत ज़्यादा ब्रांच्ड है, जब ऐसा अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट हो, ठीक है, उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में हम इन्हें भी नंबरिंग देते हैं, ठीक है, और इसका अलग से नाम लिखते हैं। यहाँ पे कैसे नाम लिखेंगे? अब जो हमारा कार्बन पेरेंट चेन के साथ कनेक्टेड है, उस कार्बन को हमें पहला नंबर देना होगा। ये नंबरिंग अल्काइल ग्रुप के लिए हो रही है, ठीक है, इसका नाम लिखने के लिए, पेरेंट चेन से इसका कोई मतलब नहीं है। बस ये हमें देखना है कि जो कार्बन पेरेंट चेन से डायरेक्टली कनेक्टेड हो उसको हम पहला नंबर दें, ठीक है। उसके बाद हम स्ट्रेट चेन एक चुन लेते हैं, 1 2 3, हम इसको चुन लेते हैं स्ट्रेट चेन, है ना। हम 1 2 3 भी कर सकते हैं, इधर भी 1 2 3 भी कर सकते हैं, बात एक ही हो जाएगी, फिर कोई दिक्कत नहीं है, हम स्ट्रेट चेन चुन लेते हैं बस। तो इसका नाम लिखना ज़रूरी है, ठीक है। तो नाम कैसे लिखेंगे? देखो, सेकेंड कार्बन के साथ मेरे पास 2 मिथाइल ग्रुप एज अ सब्सटीट्यूएंट अगेन अटैच्ड है इस अल्काइल ग्रुप में भी, तो हम लिखेंगे 2,2 डाई मिथाइल, ठीक है, और 3 कार्बन की चेन है ना, ये रहा पेरेंट चेन, इसमें ये है, तो इसमें हो जाएगा ये प्रोपाइल, ठीक है, ये अल्काइल ग्रुप है। अब ये अल्काइल ग्रुप किस कार्बन के साथ कनेक्टेड है? 5th कार्बन के साथ, तो इसीलिए हम यहाँ पे देंगे 5, लिखेंगे 5 डैश, देन अंडर हाइफन अंडर ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, we are going to write the name of this alkyl group, branched alkyl group, that is 2,2 dimethyl propyl, and after that हम लिखेंगे, क्या लिखते हैं, ये हमारा सब्सटीट्यूएंट हो गया। इसके बाद हम क्या लिखेंगे? वर्ड रूट। वर्ड रूट के लिए हम लिखेंगे 9 कार्बन की चेन है तो नॉन, और क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो ये हमारा हो जाएगा नॉन एन, ठीक है। तो बहुत इजी है, ये फर्दर ब्रांचिंग रहने से हम इस तरह से इसको सिलेक्ट करते हैं। नाउ ये भी हो सकता है कि अगर हमारा अल्काइल ग्रुप में आइसो, देन नियो, ठीक है, ये सब है, ये सब अगर आ जाए तो हम कैसे नाम देंगे, ठीक है।